Hello everyone, welcome to the session. And in this class, we will be covering the basics of the Article 19, which is the protection of certain rights regarding to freedom of speech. Now, this article is the Holy Trinity that we create with the Article 14, 19, and 21. And these three articles are the most important for our exams. So we have to focus especially on Article 19 and 21 because the conceptual part has been clarified in the Article 14. So now we will learn about the Article 19 and its components. So we will do the bare reading. So with this, we should know what is there in the article itself. So clause 1, subclause A talks about freedom of speech and expression, assemble peaceably without arms, form association or union or cooperative society, which was added in 2011, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India with certain exceptions. And F, which we have to focus on, which I will make a separate class, omitted by 44th constitutional amendment, which was actually the right to property, and subclause G, that is to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. Now, these are the exceptions as per these subclauses, which you can read in the notes itself or in the Bare Act. Now, if we talk about the reasonable restrictions, जिसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं, सो पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट डेफिनेशन. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एंड केस टू केस, interpretations have changed by the Supreme Court depending upon what case it is. Right now, we need to learn the basics of what is a reasonableness and what are the restrictions. So, reasonableness has been explained to you in Article 14 and 15, right? And then what are the restrictions which has to be reasonable in context to Article 19. Now, reasonableness demands proportionality. As we have read the principle of proportionality, so it means that the principle of proportionality, it means that the restriction imposed must be proportional. ठीक है, to what? To the restrictions, and must strike balance between fundamental right and the restrictions, and not to be excessive or arbitrary. सो प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्ररीनेस एंड नॉन आर्बिट्ररीनेस जो हम आर्टिकल 14 एंड 15 में ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके साथ इसको आप क्लब करेंगे जब भी आप समझाएंगे कि आर्बिट्ररीनेस होती क्या है एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड रीजनेबलनेस होती क्या है. देन सेकेंड पॉइंट आता है कि रीजनेबलनेस both has to be substantive and procedural. Now what does that mean? It means that the nature of restriction as well as the procedure prescribed. ठीक है, हम किसी चीज़ के ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते जिसका नेचर बहुत अलग हो एंड इस तरीके से उसको अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो कि बताया ना गया हो एज पर द लॉ. सो मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन टू ऑब्जेक्ट विच लेजिस्लेचर सीक्स टू अचीव. ठीक है, एंड दिस वॉज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द रामलीला मैदान वर्सेज होम सेक्रेटरी केस. एंड रिस्ट्रिक्शन नॉट टू बी एक्सेसिव. ठीक है, ये कहता है सब्सटैंटिव रीजनेबलनेस, एंड प्रोसीजरल कहता है कि द नेचुरल जस्टिस एज कंडीशन इज टू बी फॉलोड. ठीक है, जिसके अंदर 3 और चीज़ें आती हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम नेचुरल जस्टिस का एक बार टॉपिक पढ़ेंगे, स्पेशली इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. नाउ, रीजनेबलनेस एज एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ठीक है ना, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हम इसे कैसे देखते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी डिटरमाइंड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर. ठीक है ना, नॉट इन अ सब्जेक्टिव मैनर. ये सब्जेक्टिव टू गवर्नमेंट नहीं है कि हमें क्या लग रहा है कि वो रीजनेबल है, हम उसी तरीके से उसको यूज़ करेंगे, बट इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, एंड दैट ऑब्जेक्टिविटी हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस. ऑल्सो इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक बट नॉट इन एवरी केस. ठीक है, कैसे? केशवानंदा भारती केस के अंदर ये कहा गया था कि reasonable restriction not only view from the point of view of citizen but also from point of problem. ठीक है, and that problem before the legislature and object sought. ठीक है, and not in general public but एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है जो लेजिस्लेचर भी फेस कर रहा है. ठीक है,
नाउ रीजनेबलनेस इंक्लूड्स प्रोहिबिशन। ना उसका मतलब क्या है कि रीजनेबलनेस का मतलब ये भी हो सकता है कि टोटल प्रोहिबिशन भी हो उस चीज़ की, जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स टोटल प्रोहिबिशन। ये बात कही थी धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आर्टिकल 19 के एक सब क्लॉज के अंदर, क्लॉज 1 एंड एक किसी सब क्लॉज के अंदर इस चीज़ की बात की गई है कि दैट यू कैन ट्रैवल एंड रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया। हाउएवर देयर इज अ टोटल प्रोहिबिशन इन एरियाज दैट आर इन इनर लाइन परमिट, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज जहाँ पर मना किया गया है कि आप यहाँ नहीं रह सकते, वहाँ पर आप जाके इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ की एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज वहाँ पर एक ऐसी पॉपुलेशन रहती है जो कि बाहर वाली पॉपुलेशन के साथ रिसाइड नहीं कर सकती, एंड दैट इज टोटल प्रोहिबिशन एंड दैट इज रीजनेबल इनफ, ठीक है। एंड अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आप ऐसा प्रोफेशन नहीं कर सकते जो इलीगल है पर से, जैसे मेरे को ड्रग्स बेचना है, ठीक है, मतलब कहने की बात है कि मेरे को ड्रग्स बेचना है एंड कहीं आर्टिकल में लिखा है यू कैन प्रोफेस एनी प्रोफेशन, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ड्रग्स बेचने लग जाऊं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज अगेंस्ट द जनरल पब्लिक हेल्थ इन द कंट्रीज इंटरेस्ट इटसेल्फ एज वेल एज कि उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, सो टोटल प्रोहिबिशन भी है, ठीक है ना। रीजनेबलनेस इंक्लूड्स टोटल प्रोहिबिशन टू। नाउ reasonableness and American due process. Now, the concept of reasonableness has a narrower construct than American due process, and that is the reason why the Constituent Assembly decided not to use this particular word due process, but use procedure established by law and rule of law instead of this particular word, because it has a very wide meaning. Though in the principle and in the philosophical sense we are moving towards this from the case of Menaka Gandhi, but we still have to see the procedural matters and the intent behind the act. Now the burden of proving reasonableness, obviously it is objective, and that onus of proof is upon the state and not upon the person who has brought the suit against the government that this particular thing is unreasonable, but it is on the government itself, on the state itself, to prove that the restriction imposed is reasonable, ठीक है, and that was stated in the Bijoy Emanuel versus State of Kerala case. Now article 1, article 19 clause 1 sub clause A, it is about freedom of speech and expression. Now Ramesh Thapar versus State of Madras, इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया था कि एवरी सिटीजन इज फ्री टू से और पब्लिश प्रोवाइडेड ही डज नॉट ट्रैम्पल अपॉन राइट ऑफ अदर्स, ठीक है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप प्रॉपरली जो आपको कहना है वो कहिए, पब्लिश करिए जो करना करिए, टू दैट पॉइंट जहाँ पर आप दूसरों के राइट्स को वायलेट ना करें। जैसे आपको कोई बात कहनी है बट आप किसी के अगेंस्ट, आप कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते कि यार मेरे पास पूरा राइट था कुछ कहने का बट मैंने इसके बारे में कह दिया बिकॉज मेरे पास पूरा राइट है, या फिर मैंने किसी को गाली दे दी, ऐसे अलाउड नहीं है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि आप उसके राइट्स को ख़राब कर रहे हैं। एंड आप किसी के अगेंस्ट किसी को डिफेम नहीं कर सकते बिकॉज वो उसका राइट है, ठीक है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि FR प्लस FD दे गो हैंड इन हैंड, बिकॉज जहाँ पर आपको राइट दिया गया वहाँ पर आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है टू प्रोटेक्ट अदर्स राइट। नाउ व्हाट डज आर्टिकल 19 इंक्लूड्स इंटर आलिया इज दैट राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है। नाउ दिस वॉज स्टेटेड इन बिजॉय एमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अंदर नेशनल एंथम नहीं गाए थे कुछ बच्चे, तो उनका पूरा राइट था टू स्टे साइलेंट इफ दे वांट टू, राइट। देन उसके बाद आता राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग, जो कि है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का केस। एंड राइट टू नो एक्सेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मैंने स्टार इसलिए लगाया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, एंड इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है RTI। नाउ विद एक्सेप्शंस ऑब्वियसली एग्जाम्पल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। सो आपसे पूछा जाए कि राइट टू नो किसके अंदर आता, तो वो आर्टिकल 19 का पार्ट है। नाउ अब राइट टू नो एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के मतलब क्या है। सो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड जब हम पढ़ते हैं तब उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि वोटर्स हैव राइट टू नो
अबाउट देयर कैंडिडेट, ठीक है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। नाउ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जो केस है, उसके अंदर एससी मैंडेटेड इलेक्शन कमीशन टू ऑब्टेन एंड डिस्क्लोज टू पब्लिक background information relating to candidates regarding assets, criminal history, etc. so that the voters are informed about who they are voting for. ठीक है, that is it. So आप इसमें खुद नहीं जानना चाहते बट आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, देख रहे हो आप, सामने से आ रहा है, ठीक है। एक होता है मैं जानना चाहता हूँ, एक है मुझे बताया जा रहा है। सो दिस इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। एंड देन देयर इज राइट टू इंफॉर्मेशन, कि मुझे जानना है। सो इसका पर्टिकुलर केस है SCI वर्सेस सुभाष सी अग्रवाल का, जिसमें ये कहा गया था कि ऑफिस ऑफ CJI इज इन द एम्बिट ऑफ RTI एंड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। हाउएवर इसके अंदर एक चीज़ और कही गई थी कि वो रीजन बिहाइंड जजमेंट है ऑफ अ जज, उसके ऊपर RTI नहीं डाल सकते, ठीक है। यानी यहां पर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज की बात करी गई, ठीक है। बिकॉज ऑफिस ऑफ CJI इज considered as a state and hence it is considered as a public authority and comes under the ambit of RTI. Now प्री सेंसरशिप क्या होता है एंड उसके ऊपर कौन से केस हैं। सो प्री सेंसरशिप का मतलब ये है कि एक चीज़ जो पब्लिश नहीं हुई है उसको पहले से सेंसर कर देना उसकी पब्लिशिंग से पहले। इसी एक पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी बॉडी है जो है सेंसरशिप बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ KA अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये था कि सेंसरशिप ऑफ फिल्म ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 19, आई गेस ये यहां पर आ गया 2, ठीक है, आर्टिकल 19(2) क्लॉज 2। सो सेंसरशिप ऑफ फिल्म वॉज हेल्ड वैलिड ड्यू टू सम रीजंस एंड इट वॉज नॉट सेड दैट सेंसरशिप हो नहीं सकती। सो इसके अंदर यही है, इट वॉज हेल्ड वैलिड। नाउ संजय लीला बंसाली वर्सेस स्टेट के अंदर ये था कि जुडिशरी कैन नॉट एंड शुड नॉट stop statutory boards like censor board from doing its statutory duty of censoring any part of the film that they may seem requires a reasonable restriction, ठीक है। एंड दैट इज इट। इसके ऊपर आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो इसी लेवल के आए हैं। नाउ फ्रीडम ऑफ प्रेस, इट इज इम्प्लिसिट, ठीक है ना, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन बट इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 19 and it means that the freedom of press is the heart of socio-political intercourse, ठीक है। it is very much important because it is the fourth pillar of the democracy, but freedom of press does not confer unbridled power upon journalists and media as they are in no better position than any other person, ठीक है। also कि even truth of an allegation does not permit justification unless it is proved to be in public good, ठीक है। एंड इसका बहुत अच्छा केस जो है वो है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये कहा गया था कि प्रेस अज्यूम्ड द रोल ऑफ पब्लिक एजुकेटर, पर्पस ऑफ प्रेस इज टू एडवांस द पब्लिक इंटरेस्ट बाय पब्लिशिंग फैक्ट्स एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एसेंशियल फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, राइट। बट इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ आता है, इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है डू दे हैव एक्सप्लिसिट पावर और डू दे हैव पावर मोर देन अ कॉमन मैन। सो नो, they do not, they just have the same powers and the same rights that a common man has under article 19. now Bennett Coleman versus यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया था कि गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजर ऑफ न्यूज प्रिंट was declared unconstitutional by सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज जो सेवरल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ना इनके न्यूज प्रिंट पर, उसको ये माना गया कि वो अनरीजनेबल थी एंड फॉर द सेम रीजन उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। नाउ इससे जुड़कर आता है मीडिया ट्रायल। नाउ व्हाट इज मीडिया ट्रायल? मीडिया ट्रायल इज फ्रीडम ऑफ मीडिया टू विच आर फाउंडिंग फादर्स वर ग्रेटली अटैच्ड
finds no mention in part 3 because they knew something. ठीक है. Now Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly that the media has no special rights which are not given or exercised by the citizen of India. ठीक है. That is it. Because इन्होंने ये बात कह दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल और दिस पर्टिकुलर इशू will be interpreted in this manner. And now trial by media means the role of media as a judge overriding the official justice delivery system. ठीक है. जैसे कि बहुत अच्छा केस है निर्भया केस एंड जेसिका लाल केस. इसके अंदर चीज प्रूव भी नहीं हुई थी, हाउएवर मीडिया ने पहले ही जो है ना उनको कर दिया था कि हाँ यही है दोषी. एंड निर्भया केस के अंदर भी पूरी बातें पता नहीं लगी थी, बट इस तरीके से उसको सेंसिटाइज किया गया कि जो है ना लोग बाहर आ गए थे. हाउएवर एक चीज़ को फैक्चुअल वे में दिखाना और एक चीज़ के अंदर जो है ना अपने ओपिनियन फ्रेम करने में बहुत अंतर होता है. नाउ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जलगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अक्यूज कैन नॉट बी कन्विक्टेड जस्ट बिकॉज प्रेस सो डिजायर. ट्रायल बाय प्रेस इज एंटीथीसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ, कैन लीड टू मिस कैरेज ऑफ जस्टिस. ठीक है. तो ये बहुत अच्छा केस है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर प्रॉपरली पूरी बातें कही गई. Now commercial advertisement. Now टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेज MTNL के केस के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एन एडवर्टाइजमेंट इज नो डाउट अ फॉर्म ऑफ स्पीच बट इट्स ट्रू कैरेक्टर इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोशन. ठीक है. एंड नाउ यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोशन. नाउ व्हेन इट टेक्स form of a commercial advertisement which has an element of trade and commerce, it no longer falls within the concept of freedom of speech. So if you are asked कि commercial advertisement वो freedom of speech का पार्ट होगा कि नहीं, तो आपको आंसर अब पता है. Now sedition versus freedom of speech. Now first off, sedition is under article 124 clause A IPC Indian Penal Code. ठीक है. So any act that is spoken, written, visual, any other incite a dissatisfaction towards government. अगर ये एलिमेंट्स कहीं भी मैंशनड है किसी की स्पीच में, किसी की भी वर्डिंग्स में, एक्शन में, रिटन, विजुअल, एनीथिंग, देन इट कैन बी टेकन एज सेडिशन. नाउ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर ये कहा गया था कि एनी लॉ इनएक्टेड इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर मे बी सेव्ड फ्रॉम वॉइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिडिटी. Now because the intent of the legislature for this particular enactment of law is the public order. ठीक है. So उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिडिटी उसे नहीं कहा जाएगा. However आप ये मान के चल सकते हैं कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर कभी किसी पे लगेंगी तो उसको उसकी इनवैलिडेशन हो सकती है. राइट. A citizen has right to say right whatever about government so long as he does not incite people to violence against government or with intention of creating public disorder. ठीक है. ये कीवर्ड्स है. नाउ बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया था कि कैजुअल रेजिंग स्लोगन्स वन और ट्वाइस alone cannot aimed at exciting dissatisfaction towards government. ठीक है. It cannot be said that एक दो बार ऐसे स्लोगन उठाने से जो है ना आपने एक्साइट कर दिया लोगों को कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हो जाए या डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ठीक है. ठीक है. सो ये आर्टिकल 19 का फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट के मैं नोट्स बना रहा हूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल. सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.